Good morning, everybody. On this beautiful Sunday morning, I welcome you all to our Upper Room India online church service. आज पास्टर जोशुआ डेविड हमें पावर ऑफ ह्यूमिलिटी के बारे में सिखाने वाले हैं. Today we learn कि how being humble is what attracts our Lord the most. लेकिन इससे पहले हम इस बात को गहराई से सीखें. आइए हम आराधना करें. Good morning, everybody. यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है. Today, as we all have gathered to worship from our homes, from wherever we are, there is a scripture that is coming to my mind, and that is found in the book of Psalms 150, the last Psalm. And I want you to read it in your Bible if you can with me. And it says that, hallelujah, praise the Lord, praise God in His holy sanctuary, praise Him in His stronghold in the sky. Praise Him for His miraculous, praise Him for His miracles of might. Praise Him for His magnificent greatness. Praise Him with the trumpets blasting. Praise Him with piano and guitar. Praise Him with drums and dancing. Praise Him with a loud resounding clash of cymbals. Praise Him with every instrument you can find. Let everyone, hallelujah, the Bible says, let everyone, everywhere, join in the crescendo of ecstatic praise to Yahweh. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And I believe that today, as we are going to obey God in His scripture as He commanded us, that let everyone, everywhere, praise His name. Hallelujah. Amen. आज हम कहना चाहते हैं कि प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है. हालेलुया. तेरे जैसा कोई नहीं है. You're strong, you're mighty. And we all stand up and give Him the praise. Hallelujah. Standing up, doesn't just really mean that, right now we are all standing. You might be sitting, you might be kneeling. But standing up is giving honor and reverence to God. Hallelujah. तो आइए अपने मनों को तैयार करें. अपने मनों से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. हालेलुया. अपने हृदय में उसके लिए आदर और सम्मान और गौरव के साथ आज उसकी आराधना करेंगे. हालेलुया. Are you ready? Church, are you ready to worship the living God? Thank you, Jesus. Father, we just commit each one of us into your mighty hands and pray that Holy Spirit, you would lead us to worship you, to praise the King of Kings and the Lord of Lords, our God who is worthy of praise and honor. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. You can clap your hands wherever you are. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Sing it again. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising Rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Who is like the Lord? Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong. And mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give Him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise
The name of the Lord is to be praised. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Wherever we are, we stand up and praise and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Stand up And praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of praise. Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Lord, we stand up and give him the praise. Stand up. Stand up and give him One last time we cry, stand up. stand up and give him the praise. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, clap your hands and bless him. For he deserves all the praise. He deserves all the glory. Hallelujah. The heaven and all the creation bow down before him. They bow down before the King of Kings and the Lord of Lords. All creation cries out to you that you are worthy of all praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Come on, let's begin to sing a new song unto him. Let's begin to thank him for all the wonderful things that he is doing in your life. All the things that he has shown you. He's a God who is faithful. He's a God who promises, and all his promises are yes and amen in Christ Jesus. Hallelujah. Oh प्रभु जी धन्यवाद. धन्यवाद की तरह हर वादा पूरा होता है प्रभु. हम में से हर एक के जीवन में तू अपने कार्य को करता है. ओ विश्वासियों की परमेश्वर तेरी जय जयकार करते हैं. ओ आइए अपने मुंह को खोलकर उसकी आराधना करें. उससे कहें क्या वो आपके लिए करता है. Thank you, Jesus. Oh, to the living one. Our hearts are filled with gratitude today as we worship you, O God. हमारे हृदय से प्रभु धन्यवाद की एक प्रार्थना उठती है एक सच्चे खुदा को. हालेलुया.
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद
कहे धन्यवाद. Thank you Jesus. हर वो काम के लिए जो तूने हमारे बीच में किया, हर वो काम के लिए जो तू करने जा रहा है, everything that you're going to do in our lives, हर वो वादे के लिए, for every promise, we thank you Jesus. Father, today we worship you who is exalted above all else. सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर यीशु तू है. And that's why, Lord, our hearts are filled with praise today. As we lift up our hands and lift up our hearts to you and cry out that be exalted, O Lord. Be exalted, God. Jesus. Oh, we exalt. We exalt. Jesus. You're above all. For thou, O Lord, art above all the earth. For thou, O Lord, for thou, O Lord, art above all the earth. Thou art exalted far above all gods. Every hand lifted up, cry out, I exalt. I exalt thee. Come on, give him all the praise and honor. I exalt thee, and I exalt thee, oh Lord. I exalt you, oh, I exalt and I exalt thee, and I exalt thee.
Jesus. Thank you, Lord, that you called us as are your friends, Lord. प्रभु जी तूने हमें दोस्त करके पुकारा, सबसे करीबी दोस्त। Thank you, Lord. We worship you. So closer than a brother, oh God. प्रभु जी तुझसे मांगते हैं कि इस समय हम में से हर एक को छू ले प्रभु। एक प्रेमी जैसा छूता है प्रभु, हमें छू ले। Thank you, Lord. Lift up the name of Jesus. Jesus, the name above all. Sing it to Jesus. Sing it to Jesus. Oh, you're my friend forever. Oh, my best friend, Lord. Oh, मेरा सच्चा दोस्त यीशु, हमेशा हमेशा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. What a beautiful name that is found in you, Lord. What a beautiful name. मेरा प्रभु, मेरा यीशु, the love of my life. Thank you, Jesus. मेरा प्रभु. Come on, everybody, lift up the name of Jesus. Yeshu, name that is higher. Yeshu, Yeshu, मेरा प्रभु. Jesus, the love of my life. Oh, we worship Jesus. 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 The love of my life.
There is love in your name, Lord. There is love in your name. प्रभु जी, यीशु मसीह वो नाम है जिसमें हम प्रेम पाते हैं, जिसमें हम वो शांति पाते हैं जो यीशु तूने हमारे लिए दिया. And we pray that, Lord, as we continue, Lord, with a heart of worship, Lord, we pray that your peace would reign in our hearts. Whoever is worshiping with us right now, in the days to come, when they join us and they worship, we pray that, Lord, your peace would grip their heart. Hallelujah. To all who lift up the name of Jesus, a friend who is for us, for our entire life. We bless you. All honor and all glory to you. Amen. परमेश्वर ने हमारे लाइफ में बहुत से भले काम किए हैं, और जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो एक थैंक्स गिविंग का ऑफरिंग ठहरता है. जैसा 2 Corinthians 9:11 में लिखा है, You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through your generosity will result in thanksgiving to God. तो इस समय जब अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं, हम पूरे थैंक्स गिविंग के हार्ट से परमेश्वर के भवन में बोए. प्रेज द लॉर्ड. You know, हमारा जो परमेश्वर है उसके काम कभी भी नहीं बदलते हैं. The works of God are always great and mighty. The way He blessed, the way He's worked throughout creation, He is working today. Hallelujah. And today as we come and worship Him, let's believe God that He will do great and mighty works in each one of our lives. Hallelujah. आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं. हमारा प्रभु सुंदर है उसका नाम.
We live for you, Lord. Jesus. Oh, yes. हमारा प्रभु, हमारा प्रभु, जिए तेरे लिए, जिए तेरे लिए। Thank you, Lord. हम जिए तेरे लिए, जिए तेरे लिए। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी ये उम्मीद है कि आपने आराधना की और इन गीतों का आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद उठाया है। प्यारो, जब कभी हम सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्वर्ग हमारे स्थान पर उतर आता है। The Bible declares that God inhabits the praises of His people. निश्चय जानो कि जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते आराधना के रूप में, परमेश्वर आनंदित होता है और अपने बच्चों की उपस्थिति में वो आनंद को मनाता है। आज जो विषय पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला है, जो मैं अपनी कलीसिया के साथ बांटना चाहता हूं, वो है पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता की सामर्थ। कई बार ऐसा होता है आज के जमाने में, नम्र व्यक्ति कमजोर देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को नम्र करता है, झुका देता है, दीन बना देता है, समाज सोचता है ये डरपोक व्यक्ति है, समाज कहता है ये कोई काम का व्यक्ति नहीं, समाज कहता है अरे तुझे अपना अहम नहीं है क्या, समाज ये कहता है यू डोंट हैव योर ओन ईगो, वो कहता है अरे यार तुझे अपना खुद का अहम नहीं है क्या। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, परमेश्वर के वचन में हम्बलनेस इज वेरी पावरफुल, नम्रता बहुत सामर्थ्य है। और आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको नम्रता के फायदे बताना चाहता हूं। नम्रता क्या है हम देखेंगे, और नम्रता के क्या फायदे हैं इन बातों को देखेंगे। कैसे परमेश्वर नम्र व्यक्ति के साथ पेश आता है, इन बातों को आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पर आइए इस वचन को सुनने से पहले 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन के सारे आशीषों के लिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज सुबह जब तेरे लोग तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, हे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मुझे अपने सामर्थ्य से अभिषेक कर। यीशु के नाम में मैं अपने अभिषेक को रिसीव करता हूं। प्रभु तेरे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, मेरे होठों और जबानों को स्पर्श कर। जब मैं तेरे नम्रता के विषय में लोगों को सिखाता हूं, ये सिर्फ शब्द मात्र नहीं, परंतु परमेश्वर यीशु तेरे स्वभाव में सम्मिलित होना हो जाने पाए। पिता हर एक सुनने वाला आज आशीषित हो जाए, और प्रभु हर एक घमंडी आज यीशु के नाम से परमेश्वर नम्रता का स्वाद चखने पाए और उसका स्वभाव बदल जाए। ऐसी दया यीशु के नाम से मांगता हूं। प्रभु बोलने में क्लैरिटी देना, विचारों की क्लैरिटी देना, और हम में से हर एक को परमेश्वर ये एक ऐसा टाइम देना जब शैतान हम में से किसी का कुछ बिगाड़ने ना पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमेन, आमेन। यू नो माय फ्रेंड्स, जब हम यीशु मसीह के जीवन का अध्ययन करते हैं, एक बात यीशु मसीह के जीवन से दिखाई देती, वो है नम्रता। प्रभु यीशु मसीह का जीवन नम्रता का एक प्रतीक है। यदि किसी को नम्रता सीखना है तो जरूरी है कि वो यीशु के जीवन चरित्र को देखे। वो जो राजाओं का राजा है, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो स्वर्गों का मालिक है, वो गाय के गौशाले में जन्म होने से लज जाता नहीं। वो जो सामर्थी है, वो जिसके तुल्य और कोई है नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक गुलाम बनने से लज जाता नहीं। वो सबका मालिक है, अपने चेलों के पांव धोने से लज जाता नहीं। वो जो सबसे बड़ा राजा है, वो दूसरों की सेवा करने से लज जाता नहीं है। वो दास का स्वरूप धारण करने से लज जाता नहीं है। वो मृत्यु तक आज्ञाकारी होने से लज जाता नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, मेरे प्यारो, नम्रता यीशु के जीवन से सीखी जाती है। इस संसार में बहुत सारी फॉल्स ह्यूमिलिटी के एग्जाम्पल्स है, वो जो लोगों को दिखाने के लिए नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत अच्छा लगा, झुक के सलाम कर देना, ये तो बाहरी रूप से हम नम्रता को दर्शाते हैं। बड़े अच्छे रीति से बात करना नम्रता को दर्शाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा भीतरी जीवन परमेश्वर के योग्य है या नहीं, ये हमको जानना है।
आज का वचन में हम परमेश्वर के वचन की बातों को देखने जा रहे हैं। देखो परमेश्वर का वचन भजन संहिता 138 इसके 6वें वचन में क्या कहता है। बाइबल ये कहती है, यद्यपि यहोवा ऊंचे पे विराजमान है तो भी वो नम्र व्यक्ति पर दृष्टि करता है। इवन दो गॉड इज हाई अबव ऑल, ही रिगार्ड्स द लोली। सोच के देखो, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर किसका आदर करता है? उसका आदर करता जो नम्र है। अगर ऐसी बात है कि एक नम्र व्यक्ति का आदर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर करता है, तो फिर हमें नम्रता अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि जिसका आदर परमेश्वर करता है वो व्यक्ति के दिन को परमेश्वर बदल देता है। डू यू नो वन थिंग? इफ गॉड ऑनर्स यू, the world will be forced to honor you. If God honors you, angels will be forced to honor you. If God honors you, creation will be forced to honor you. क्योंकि जिसका आदर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करता है, और कौन उसके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? कौन उसको नीचे गिरा सकता है? कौन उसको नीचे झुका सकता है? जिसको परमेश्वर उठाना जानता है, वो उसको कौन नीचे गिरा सकता है? मेरे प्यारो, हम अपनी आशा लगाते हैं कि वो व्यक्ति का फेवर मेरे जीवन पर आ जाए तो मैं ऊंचाई पे आ जाऊंगा। हम सोचते हैं फलाना व्यक्ति मेरे जीवन पर आ जाए तो मेरा आदर और सम्मान होने लगेगा। हम सेलिब्रिटीज के साथ खड़े रह के फोटो लेते हैं और दूसरों को बताते हैं, देख मेरी पहुंच किसके साथ है। हम बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो लेना चाहते हैं, उनका पर्सनल नंबर लेना चाहते हैं। बड़े प्रभु के सेवकों से मिलते तो हम बोलते हैं, ब्रदर आपका नंबर मुझे दे दो। और मालूम, हम ये सोचते हैं, वाह मेरा कनेक्शन उतने बड़े प्रभु के सेवक के साथ है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग माय फ्रेंड, इन कनेक्शन से आपके जीवन में उन्नति नहीं आती। उन्नति आपके जीवन में नम्रता से आती है। द बाइबल सेज गॉड रिगार्ड्स द हम्बल। आज इस संसार में लोग मनुष्य से आदर प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा पुरुष इस संसार में होकर गया जो ये कहता है, मैं मनुष्य का आदर नहीं चाहता, मेरा आदर परमेश्वर पिता की ओर से होता है। Why would God honor Jesus above everyone else? सिंपल आंसर, परमेश्वर पिता यीशु का आदर इसलिए करता बिकॉज ही इज हम्बल इन हार्ट। वो यीशु मसीह नम्र है, इसलिए परमेश्वर पिता उसका आदर करता। डू यू नो, आपके हृदय की नम्रता परमेश्वर के ध्यान को आपकी ओर आकर्षित कर लेगी। यदि आप अपने जीवन में है और आप ये सोचेंगे, भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यू नो मैं बड़े गरीब परिस्थिति में हूं। सुनो, गरीब होना नम्रता नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं, मैं बहुत ही हम्बल आदमी है यार, साइकिल में आता है, उसके पास बहुत ही बेसिक खाना खाता है, बहुत ही साधारण से कपड़े पहनता है, बड़ा छोटा सा मोबाइल उसके पास है, बहुत ही नम्र व्यक्ति है। लेट मी टेल यू वन थिंग, नम्रता हमारे गैजेट से नहीं आती, नम्रता हमारे भोजन से नहीं आती, नम्रता हमारे पहनने ओढ़ने से नहीं आती, नम्रता हमारे झुक के चलने से नहीं आती, नम्रता घुटनों से खड़े रहने से नहीं आती, किसी के सामने उसके पैर छूने से नम्रता नहीं आती। नम्रता यीशु के जीवन को अपने अंदर अपनाने से आती है। एक ही है जो नम्र है परमेश्वर के दृष्टि में। और जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह को जो नम्र हो गया, उसको जब परमेश्वर ने देखा, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, वो यीशु का स्वभाव जब आपके अंदर आ जाता है, वो पिता को अट्रैक्ट करता है। आज परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातों को देखेंगे। मैं जब बाइबल में पढ़ता तो पुराने नियम में एक नबी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक प्रॉफिट, उसका नाम मोसेस है। क्या अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखा, इतने सुपरनैचुरल मिरेकल्स देखे। आई डोंट थिंक एनीबडी सॉ सच ग्रेट मिरेकल्स जो मोसेस ने अपने जीवन में देखा। जो एनकाउंटर्स मोसेस के पास हुए, मैं नहीं जानता किसी और के पास ऐसे एनकाउंटर्स आत्मिक जीवन में है भी या नहीं है। बट वन थिंग आई वांट यू टू नो माय फ्रेंड्स, मोसेस इतना स्पेशल क्यों हुआ? द बाइबल डिक्लेयर्स, गिनती की किताब इसके 12 अध्याय के 3 वचन में, द बाइबल सेज, मेरा दास मूसा सबसे ज्यादा दीन है। सारे लोगों में सबसे ज्यादा दीन व्यक्ति मेरा सेवक मोसेस है। वाओ, इमेजिन गॉड इज सेइंग मोसेस इज मीकेस्ट ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है।
और जब परमेश्वर ने उसको देखा, सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है, गॉड डिफेंड्स हिम, गॉड फाइट्स हिज बैटल, गॉड स्टैंड्स बाय हिम। उसके शब्दों को गिरने नहीं देता, जो कुछ मूसा कहता है उसको वो पूरा करता। व्हाई? बिकॉज ही इज मीकेस्ट ऑफ ऑल। तुम्हें मालूम है, परमेश्वर को कुछ चीज मन पसंद लगती है और वो है नम्रता। नम्रता सबसे आनंद देने वाली चीज है। जब एक व्यक्ति नम्र हो जाता है, वो परमेश्वर अपना स्वभाव उसमें देख पाता है। बाइबल में जब मैं देखता हूं, इस संसार में इतने सारे लोग थे, क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा बड़े कामों को किया? द आंसर इज सिंपल, ही वॉज मीकेस्ट ऑफ ऑल। तभी तो उसके जैसा ग्रेट लीडर और कोई नहीं हो पाया। जब मैं बाइबल में देखता, यीशु मसीह के जन्म के समय में बहुत सारी कुंवारियां थी। यीशु किसी भी कुंवारी के द्वारा जन्म ले सकता था, हजारों कुंवारियां इसराइल में होगी, लेकिन यीशु ने मरियम को ही क्यों चुना? क्यों परमेश्वर ने मरियम को ही चुना कि उसके द्वारा यीशु को इस पृथ्वी पे जन्म दे? बाइबल कहती है लूका इसके पहले अध्याय के 46 वचन में, मरियम ने यह गीत गाया, तूने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। Think about one thing God you looked upon is the meekness of your handmaid. तूने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। तुम्हें मैं बताऊं, आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को अपना हुनर दिखाना चाहते हैं, जो परमेश्वर को अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर टैलेंट से आकर्षित नहीं होता, परमेश्वर नम्रता से आकर्षित होने वाला परमेश्वर है। द बाइबल इज वेरी क्लियर, परमेश्वर नम्रता से आकर्षित होता है। एक बार की बात है, मेरा बड़ा बेटा जॉश, वो उस समय छोटा था, सिर्फ 2-2.5 साल का होगा। मैं एक दिन अपने ऑफिस से लौट कर आया और वो हमारे घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर खड़े रह के डांस करने लगा। बोला, पापा देखो 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 आई एम डांसिंग, पापा देखो देखो आई एम डांसिंग। मैं वहां बैठा था, अपना काम कर रहा था, और मेरा बेटा बार बार मुझे बोलता, पापा देखो मैं डांस कर रहा, पापा मैं देखो डांस कर रहा। जब मैं अपने बेटे को देखने लगा, उसको देखा क्योंकि वो मेरा बेटा था, डांस कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, बट मालूम उसका डांस मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। सिंपल इसलिए मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उससे अच्छे अच्छे डांस मैंने देखे हैं। मेरे बेटे का डांस मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, मैं अपने काम में फोकस था। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, डांस करते करते उसका पैर स्लिप हुआ और वो टेबल से नीचे गिरा, और गिरते ही उसने पुकारा डैडी। वो एक आवाज जो उसके मुख से आई, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस दिन जब मैं उठाकर टेरिस पर अपने बेटे को सहलाते हुए घूम रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा जब तेरा बेटा डांस तुझे दिखा रहा था, तूने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मैंने पिता से कहा, फादर मैंने उससे अच्छे अच्छे डांस देखे हैं, वो डांस मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। उसने कहा, फिर जब वो गिर गया तो तूने उसको क्यों उठाया? मैंने कहा, उसकी कमजोरी में जब नम्र होके वो मुझे पुकारा, मैंने उससे उठा लिया अपनी गोदी में। जब वो डांस बता रहा था, डैडी देखो मेरा डांस, डैडी देखो मेरा डांस, वो डांस देख के मैं आकर्षित नहीं हो रहा था, लेकिन उसके कमजोर पहलू में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा तू कभी कभी मेरे पास ऐसे ही आता है, तू अपने स्ट्रेंथ मुझे दिखाना चाहता है, तेरे उपलब्धियां मुझे दिखाना चाहता है, तेरे जो हासिल तूने किए उन बातों को मुझे दिखाना चाहता है। दैट इज ऑल गुड, आई लाइक इट, पर बेटा मेरा दिल तेरे नम्रता में है। जब मैं तुझे नम्र देखता हूं, जब मैं तुझे दीन देखता हूं, जब मैं तुझे कमजोर हालत में देखता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, तब मैं तुझे अपने गोद में उठा लेता हूं। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बाइबल इज वेरी क्लियर दैट ही पिक्स अस अप, ही पिक्स अस अप। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यद्यपि यहोवा परमेश्वर ऊंचे पे है, वो नम्र पर दृष्टि करता है। आज हम अपनी स्ट्रेंथ को लेके प्रभु के पास मत आओ, अपने कमजोरी को लेके प्रभु के पास आओ। एक घमंडी व्यक्ति अपनी उपलब्धियों की बात करता है, एक नम्र व्यक्ति अपने कमजोरियों की बात करता है। तुम्हें याद है, एक दिन यीशु मसीह आराधनालय के सामने थे और बहुत से लोग प्रार्थना करने लगे, और तब ऐसे समय में एक फरीसी आया और वो फरीसी आकर प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं दशवांश देता हूं, हे परमेश्वर मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, हे परमेश्वर मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं। अपने तारीफ में बहुत सारी बात करने लगा। और बाजू में एक आदमी था जो दूर देवड़ी के खड़े होकर कहने लगा, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर।
द बाइबल सेज, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का ध्यान उस नम्र व्यक्ति पे गया जो ये कहने लगा, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मेरे प्यारों, कई बार हम अपने जीवन में समझने लगते हैं कि वी आर समबडी, और जो समबडी समझने लगता है अपने आप को, वो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित नहीं करता। परमेश्वर का ध्यान वो आकर्षित करता जो परमेश्वर के नजरों में नम्र बना रहता। बाइबल डिक्लेयर्स, मैरी ने कहा, तूने अपने दासी की दीनता पर दृष्टि की है। और वो दासी की दीनता पर दृष्टि क्या की? ओ मरियम को यीशु मसीह ने अपनी माता होने के लिए चुन लिया। इमेजिन व्हाट अ प्रिविलेज मैरी गॉड। व्हाई? बिकॉज शी वाज मीक इन हार्ट। यीशु मसीह कहता मत्ती इसके 11 अध्याय के 29 वचन में, मुझसे सीख क्योंकि मैं हृदय में नम्र हूं, मैं मन में दीन हूं, लर्न फ्रॉम मी। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों हम यीशु मसीह से सीखे? क्योंकि वो मन में दीन है, वो नम्र है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुझसे सीख क्योंकि मैं सबसे ज्यादा अनॉइंटेड हूं। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा मुझसे सीख क्योंकि मैं स्वर्ग से उतर कर आया हूं। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा मुझसे सीख क्योंकि मुझे पानी पे चलना आता, मुर्दा जिलाना आता, कोड़ी को शुद्ध करना आता, आई एम ऑल पावरफुल, इसलिए मुझसे सीख। नो, जीसस सेड, मुझसे सीख क्योंकि मैं मन में नम्र हूं और दीन हूं। My friend, let me tell you, प्रभु यीशु मसीह कहता, one thing you need to learn from me, मन की दीनता। यदि मैं मन की दीनता को यीशु मसीह से सीख जाऊंगा, वो दीनता मेरे दिनों को बदल देगी, वो दीनता मेरे जीवनचर्या को बदल देगी। भजन संहिता 18 इसके 35 वचन में क्या लिखा है मालूम? Your meekness has made me great। तेरी दीनता ने मुझे महान बना दिया, तेरी नम्रता ने मुझे महान बना दिया। वाह, थिंक अबाउट इट। परमेश्वर की नम्रता मुझे महान बना देती है। जब परमेश्वर की नम्रता मेरे जीवन में कार्य करने लगती है, जब मैं परमेश्वर की नम्रता को अपने जीवन में कार्य करने देता हूं, वो नम्रता मुझे महान बना देती है। वो नम्रता मुझे मेरी परिस्थिति से ऊपर उठा देती है। वो नम्रता मेरे जीवन में सारी बातों को बदल देती है। मैं आपको एक बात बताऊं, नम्रता, समुद्र में जो व्यक्ति गिर जाता, जिसको लाइफ जैकेट पहना के फेंक देते, वो लाइफ जैकेट उसको पानी पे उठा के रखता, वैसे ही नम्रता है। आपके अंदर की नम्रता आपको जिंदगी के तूफानों में ऊंचाई पर लेकर आएगी, समस्याओं में ऊंचाई पर लेकर आएगी। हो सकता है सब लोग आपके विरोध खड़े हो जाए, लेकिन अगर मन में आप दीन और नम्र है, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको ऊंचाई पर उठाएगा। दैट इज व्हाट गॉड डज। When you regard someone, you change your plans for them। मालूम, मैंने एक चीज को देखा, परमेश्वर नम्र व्यक्ति का रिगार्ड करता है, और इस कारण परमेश्वर उस व्यक्ति के भलाई के लिए योजना बनाता है। जब आप सही में किसी का आदर करते हैं ना, आप हर वो काम करेंगे जो वो उस व्यक्ति के भलाई का हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसका आप तिरस्कार, जिसको जो घमंडी है ना, वो आपको पसंद नहीं आएगा, जो नम्र है वो आपको पसंद आएगा। यहां परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, गॉड लिफ्ट्स अप द हम्बल मैन, ही रिगार्ड्स द हम्बल। वो हर एक नम्र व्यक्ति के जीवन पर दया करता है। जब मैं बाइबल में अध्ययन करने लगा नम्रता के विषय में, मुझे कुछ आशीर्वाद दिखाई दिए जो नम्र व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर देता है। सुनो प्यारो, हो सकता है आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए, या हो सकता है आप एक धनी परिवार में पैदा हुए, हो सकता है आप किसी भी कल्चर में पैदा हुए, किसी भी देश में पैदा हुए, कोई भी भाषा बोलने वाले के बीच में पैदा हुए, बट इफ यू कैन हैव दिस एटीट्यूड इन योर हार्ट, दिस एटीट्यूड विल चेंज एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ। एक ऐसा एटीट्यूड है जो आपके भविष्य को बदल कर रख देता। लोग मालूम अपने भविष्य को बदलने के लिए कितने बार अलग अलग चीजों का प्रयास करते हैं। कुछ लोग मालूम क्या करते हैं, वो लोग वास्तुशास्त्र को देखते हैं और वास्तुशास्त्र के अनुसार बोलते रहे, ओ ये घर को बदल दे तो तेरे जीवन में भलाई होगी, ओ तुम्हारा वो घर में रहेंगे ना तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हाल ही में मुझे पिछले हफ्ते किसी का फोन आया और वो ये कहने लगे कि हमें अपना घर बदलने के लिए कहा गया ज्योतिषी ने, क्योंकि हमारे घर में वास्तु के अनुसार कुछ चीजें सही नहीं है और इसलिए हमारे घर में शनि का प्रकोप आता है, क्योंकि वास्तु में सही चीजें नहीं है और हमें वो घर बदलना है। इस कोरोना काल के समय में, इस कठिन समय में बेचारे दर दर भटक रहे अपना घर बदलने के लिए। उनका खुद का घर है लेकिन वो घर नुकसान में देकर दूसरे घर में जाने के लिए मोहताज है। एंड आई फेल्ट सो सैड फॉर देम। मैं उनसे कहने लगा, भाई घर बदलने से दिन नहीं बदलेंगे, आचरण बदलने से दिन बदलेंगे।
बहुत सारे लोग सोचते जॉब बदल दूंगा तो परिस्थिति बदल जाएंगी। बहुत सारे लोग बोलते रिश्ते बदल दूंगा तो परिस्थिति बदल जाएंगी। कुछ लोग तो ये सोचते शहर बदल दूंगा तो परिस्थिति बदल जाएंगी। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि भाई अगर मैं देश ही छोड़ दूं, दूसरे देश चले जाऊं तो मेरी बहुत उन्नति और बहुत भलाई होंगी। बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, माय गॉड इज एबल to show you his goodness in your circumstances। आप जहां हो वहीं वो तुमको उठा सकता है। आप जिस घर में रहते हो उसी घर में वो तुम्हें ब्लेस कर सकता है। आप वो जिस स्थान में हो, जिस रिश्ते में हो, उसी रिश्ते में वो तुम्हें ब्लेस कर सकता है। कोई पति सोचता है ये पत्नी को छोड़ दूंगा तो मेरे जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। कोई पत्नी सोचती है ये पति को छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन में अच्छे दिन आएंगे। सुनो मेरे प्यारो, रिश्तों को तोड़ने से अच्छे दिन नहीं आते। अगर आज जो सिखा रहा इसको अपने जीवन में अपना लोगे, मैं गारंटी देता परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके दिन बदल जाएंगे। देखिए पहला आशीर्वाद एक नम्र व्यक्ति के जीवन पर क्या होता है। भजन संहिता 18 इसका 27 वचन, Psalms 18:27 says, Lord saves the humble। परमेश्वर नम्र व्यक्ति को बचाता है। Listen my friend, दीवारों का वास्तुशास्त्र के अनुसार होना या न होना वो प्रभाव नहीं करता। आपके हृदय की नम्रता प्रभाव करती है। The Bible says one thing, God saves the humble। मैं आपसे कहूं, यदि आप हृदय में परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएंगे, यदि घमंड को छोड़ देंगे, यदि परमेश्वर का आसरा लेंगे, यदि अपनी समझ का सहारा लेना बंद कर दोगे और प्रभु के सामने झुक जाओगे और बोलोगे हो पर प्रभु अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूं, मैं नम्र होता हूं परमेश्वर तेरे सामने, अपनी गलती और बुरी चाल चलन से फिरता हूं, तेरे सामने नम्र होता हूं। माय बाइबल सेज गॉड सेव्स द हम्बल। मेरे प्यारो, यदि आप नम्र हो जाएंगे ना, परमेश्वर आपको बचाएगा। वो गाड़ी बदलने का कोई जरूरत नहीं, घर बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जॉब बदलने की कोई जरूरत नहीं है, शहर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अपने जीवन में छुटकारे को देखना चाहते हैं तो हार्ट कंडीशन बदलने की जरूरत है, हृदय में नम्रता आने की जरूरत है। यदि आपके हृदय में नम्रता आएगी तो मालूम वो नम्रता परमेश्वर की सुरक्षा को आपके आजू बाजू लेके आती है। द बाइबल सेज गॉड सेव्स द हम्बल। इन अदर वर्ड्स, यदि परमेश्वर को आपके हृदय में नम्रता दिख गई तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा और वो स्वर्गदूत तुम्हें सुरक्षा देंगे। ना तो दिन को धूप से तुम्हारी कुछ हानि होगी, ना तो रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी, ना तो वातावरण से कुछ गड़बड़ होगा, ना तो इस कोरोना वायरस से आपके जीवन का भय होगा। Why? Because नम्र व्यक्ति को परमेश्वर सुरक्षित करता है। Hold on to this promise, my friend। बाइबल कहती है जो नम्र है व्यक्ति, परमेश्वर उसको बचाता है। आज अपने आप को दिल में झांक के देखो, क्या आप परमेश्वर के दृष्टि में नम्र हैं? लोगों के दृष्टि में नम्र होना एक बात है, परंतु वो जो भीतरी बातों को देखता है उसके दृष्टि में नम्र होना दूसरी बात है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर भीतर देखता है। बाइबल सेज इफ वी आर हम्बल इन द साइट ऑफ गॉड ही गारंटीज प्रोटेक्शन। परमेश्वर नम्र को बचाता है। ही विल रेस्क्यू। हो सकता है आप कर्जे में फंस गए, हो सकता है आप बीमारी में फंस गए, हो सकता है आप श्रापों में फंसे हैं, हो सकता है जादू टोना के प्रभाव में फंसे हैं, हो सकता है कोई ऐसी गलती आपके जीवन में हो गई जिस कारण आपका बचना नामुमकिन है। लेकिन आज यदि आप नम्र अपने आप को करेंगे, माय गॉड विल रेस्क्यू एंड रेस्टोर योर लाइफ। परमेश्वर ने कहा वो नम्र को बचाता है, वो नम्र व्यक्ति को बचाता है। ही सेव्स द हम्बल। एक राजा था जिसको एक बीमारी हो गई, उसका नाम हिजकिय्याह था और वो अपनी बीमारी से मरने वाला था। एक प्रॉफिट ने आकर उसको बताया कि तुम मरने वाला है। The Bible says वो दीवार की ओर, अपने बीमार बिछोने में दीवार की ओर पलटा और आंसुओं के साथ रोते हुए परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। जब उसने अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर ने उसकी सुन ली और बाइबल कहती है वो प्रॉफिट नाथान वहां से बाहर जाने से पहले परमेश्वर ने उससे कहा वापस लौट कर जा और मेरे दास
से कहे, क्योंकि तूने अपने आप को नम्र किया, मैंने तेरे आयु में 15 साल और बढ़ा दिए, ये विपत्ति तेरे जीवन पर नहीं आएगी। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, नम्रता जब परमेश्वर को दिखाई देती है ना, वो जजमेंट को मर्सी में बदल देता है, वो न्याय को दया में बदल देता है। नम्र व्यक्ति के लिए वो न्याय पर दया को जयवंत करा देता है, न्याय पर दया जयवंत होने लग जाती है। पर किसके लिए? उसके लिए जो अपने आप को नम्र करना जानता है। सो इफ यू हम्बल टुडे योरसेल्फ, हो सकता है आपकी गलती की वजह से कुछ नुकसान आपने जरूर उठाया है, लेकिन जब नम्र हो जाएंगे तो परमेश्वर उस नुकसान की भरपाई आपके जीवन में कर देगा और आपके दिनों को बदल देगा। दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग मैंने नम्रता के विषय में बाइबल में पाई, वो मिलता है भजन संहिता 25 इसका 9वां वचन। 25th Psalm verse number 9 says, there is divine guidance for the humble. परमेश्वर का वचन कहता है, he guides the humble in what is right and teaches them his ways. वो नम्र व्यक्ति को जो सही रास्ता है उस पर चलने की शिक्षा देता है। मालूम है, आज हम में से हर एक जन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शादी किससे करनी चाहिए, कौन सा जॉब अप्लाई करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ओ आगे मैं ये बिजनेस करूं नहीं करूं, मैं यहां इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, मैं वो घर लूं या वो नहीं लूं। हमारे माइंड क्वेश्चन से भरे पड़े हैं एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू। कभी हम किसी काउंसलर से सलाह मशवरा करते हैं, कभी एक्सपर्ट्स की एडवाइस देखते हैं, कभी हम टेलीविजन पर देखते हैं लोग इसके विषय में क्या करें। ऐसे समय में जब आपको मार्ग समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में जब आप एक ऐसे क्रॉस रोड पर हो जहां आपको डिसीजन लेना है अपने लाइफ के विषय में और आपको नहीं मालूम आगे क्या करना है, द बाइबल सेज गॉड गाइड्स द हम्बल and shows him the right way in which he should go. मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को नम्र कर दो प्रभु के सामने और उसके सामने झुक जाओ और उससे कहो, हे प्रभु, मुझे नहीं मालूम what is kept for me for tomorrow. हे प्रभु, मेरा ये डिसीजन राइट है या रॉन्ग है मुझे नहीं मालूम, but today I surrender to your will, O Lord. नम्र व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी के आगे झुक जाता है। घमंडी बोलता, मेरी ही इच्छा, मैं जो चाहता हूं वो होने पाए। नम्र व्यक्ति कहता, परमेश्वर जो तू चाहता वो मेरे जीवन में होने पाए। जब व्यक्ति नम्र होता, God shows him the right way in which he should walk. क्या आज आपके दिमाग में सवाल है कि मेरे भविष्य को लेकर मैं क्या करूं, मेरे बच्चों को लेकर मैं क्या करूं, मेरे जॉब को लेकर मैं क्या करूं, मेरे बिजनेस को लेकर मैं क्या करूं, मेरे घर को लेकर मैं क्या करूं? अगर आपका जीवन सवालों के सैलाब से घिरा हुआ है तो आज अपने आप को नम्र कर दे, क्योंकि नम्र व्यक्ति को परमेश्वर स्वयं गाइड करता है और परमेश्वर का गाइडेंस उसको लिए चलता है। उसको जिस मार्ग में जाना है उस मार्ग में परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, नम्र को अपने साथ लेकर चलता है। तीसरी आशीष जो मैंने परमेश्वर के वचन में नम्रता को लेकर देखी है वो है डिवाइन ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह, एक अलौकिक अनुग्रह नम्र व्यक्ति के जीवन पर आता है। नीति वचन 3:34 यदि आप पढ़े, जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 6 को यदि आप पढ़े, पहला पत्रस इसके 5वें अध्याय के 5वें वचन को यदि आप पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर घमंडी से घृणा करता है पर नम्र पर अनुग्रह करता है। डू यू नो माय फ्रेंड, परमेश्वर नम्र व्यक्ति पर अनुग्रह करता। अनुग्रह करने का मतलब वो व्यक्ति जो अपनी क्षमता में कुछ नहीं कर पाता, परमेश्वर उसको ऐसा वरदान देता कि वो जो अपने बल पर नहीं कर पाता वो उससे हो जाता है। जो वो खुद की ताकत में हासिल नहीं कर सकता, परमेश्वर के अनुग्रह से हासिल करता है। जो वो अपनी काबिलियत में हासिल नहीं कर सकता, परमेश्वर के अनुग्रह से हासिल करता है। एक नम्र व्यक्ति को परमेश्वर ऐसी अपरंपार आशीष देता, ऐसा अनुग्रह देता कि लोग उस नम्र व्यक्ति के जीवन को देखकर कहते, इसके साथ ऐसा हो गया, ये कैसे ऐसे कर लिया, ओ इसका जॉब इतना अच्छा कैसे लग गया, इसका शादी इतना अच्छा कैसे हो गया, ओ इसका घर इतना अच्छा कैसा हो गया। यू नो व्हाई? बिकॉज वो नम्र व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन पर अट्रैक्ट करके रखता। द ग्रेस ऑफ गॉड इज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द ह्यूमिलिटी ऑफ क्राइस्ट। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह की नम्रता पर आकर्षित होता है। यदि यीशु की नम्रता आपके जीवन में रहेगी तो आप परमेश्वर के अनुग्रह में नित्य चलने पाएंगे। आपके काम सारे सफल होंगे, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आप सफलता को देखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन योर लाइफ। व्हाटएवर यू डू यू विल सी विक्ट्रीज ऑफ द लॉर्ड। डिवाइन ग्रेस follows those who are humble in their heart before God.
एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है। आप उसको अनजाने जगह में डाल दो, वो वहां भी सफल हो जाएगा। आप उसको ऐसी जगह में डाल दो जहां कुछ नहीं फलता, यह व्यक्ति फलवंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। वो जहां कहीं जाता है वो फलवंत होने लगता है, सिंपली इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के नम्रता में चलता है। आज मेरी दुआ है यीशु का नम्रता का ओढ़ना वो अपनी कलीसिया को उड़ा दे। ओ मैं प्रार्थना करता हूं अपर रूम चर्च परमेश्वर के दृष्टि में नम्र पाया जाए। मुझे सुनने वाले लोग परमेश्वर के दृष्टि में नम्र पाए जाए, क्योंकि यदि वे नम्र होंगे तो परमेश्वर नम्र को धूरी से उठाकर अधिपति के साथ बैठाता है। वो परमेश्वर नम्र पर दृष्टि करता है। वो परमेश्वर नम्र व्यक्ति को गाइड करता है। वो परमेश्वर नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देता है। वो परमेश्वर नम्र व्यक्ति से आकर्षित होता है। आज मालूम अपने जीवन में सबसे बढ़कर यत्न करो नम्रता को प्राप्त करने के लिए। पीपल वर्क ऑन देयर स्किल्स, बट इफ यू कैन वर्क ऑन योर कैरेक्टर, God will bless you with everything you require. कई बार हमारे जीवन में हमारी उपलब्धियों को लेने के कारण हमारा कॉलर हम टाइट कर लेते हैं। Let me tell you my friend, जो नम्र होता है ना अपने हार्ट में, वो परमेश्वर के अनुग्रह को अट्रैक्ट करता है, अपने अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है। मैंने अपने जीवन में जब से प्रभु के सामने समर्पण किया और यीशु से कहा, लॉर्ड मेक मी हम्बल लॉर्ड बिफोर यू, हे पवित्र आत्मा तेरी नम्रता मेरे जीवन में आने पाए, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का स्वाद अपने जीवन में चखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट ट्रूली वर्क्स माय फ्रेंड। अगला आशीष जो मैंने देखा है जो परमेश्वर नम्र व्यक्ति को देता है, चौथी आशीष, इट इज विजडम। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर ज्ञान से भरता है। देखिए नीति वचन 11:2 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. क्या लिखा है? जब घमंड आता है तो शर्मिंदगी को लेकर आता है, परंतु नम्रता के साथ परमेश्वर का ज्ञान आता है। Think with me. Humility not only attracts the grace of God, humility attracts the wisdom of God. इन कठिन दिनों में यदि एक व्यक्ति को कुछ चाहिए तो परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और क्या चाहिए? परमेश्वर का विजडम चाहिए। विजडम डिफाइन करता है आपका भविष्य कैसा होने वाला है। बाय विजडम यू कैन विन बैटल्स, बाय विजडम यू कैन हैव विक्ट्रीज, बाय विजडम यू कैन बिल्ड अ ग्रेट फ्यूचर। और जिनके पास विजडम होता है उनके दिन बदल जाते हैं। वो पैसे को अगर विजडम के साथ यूज करेंगे तो वो पैसा मल्टीप्लाई होने लगता है। जो भी चीज में आप विजडम को डाल देंगे वो सस्टेनेबल बन जाती है, वो चीजें बढ़ने लग जाती है, वो चीजें आशीर्वादित होने लग जाती है। द बाइबल सेज परमेश्वर अफ्लिक्टेड व्यक्ति को बचाता है क्योंकि वो नम्र है। परमेश्वर उस व्यक्ति को गाइड करता है जो नम्र है। परमेश्वर उस व्यक्ति को अनुग्रह देता जो नम्र है। परमेश्वर उस व्यक्ति को विजडम देता जो नम्र है। आज हो सकता है लोगों के दृष्टि में आप मूर्ख होंगे, बट यदि आप प्रभु के दृष्टि में नम्र हो जाएंगे, स्वर्ग का विजडम परमेश्वर आपको ढेल देगा। क्योंकि यूसुफ नम्र था प्रभु की दृष्टि में, ऐसा विजडम से परमेश्वर ने उसको भरा कि वो पूरे मिस्र को अकाल से बचाने पाया। ओ माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, हम्बल व्यक्ति को परमेश्वर ऐसा विजडम देता जो दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम एक नम्र व्यक्ति सॉल्व कर देता। जो चीजें कम्युनिटी के लीडर्स सॉल्व नहीं कर पाते, एक नम्र व्यक्ति उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता। एक अहंकारी जब अगुवा बनता है देश को बर्बाद करता है। एक नम्र व्यक्ति जब अगुवा बनता है वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है और देश का कल्याण करता है। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नम्र व्यक्ति ने अगुवा बनना, नम्र व्यक्ति को परमेश्वर अगुवा बनाता है। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर विजडम देता है और वो विजडम से काम करता। नो वंडर मूसा पूरे इस्राएल का जज था। वो 6 लाख से अधिक लोग थे। जब कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन होता और वो मूसा के पास आते कि हमारा न्याय चुका, वो डिवाइन विजडम के द्वारा मोसेस उनका न्याय चुकाता। क्यों ऐसा कर पाता? सिंपली इसलिए क्योंकि वो नम्र व्यक्ति था। एक नम्र व्यक्ति
हमेशा परमेश्वर के विजडम को अट्रैक्ट करता है। अगली ब्लेसिंग जो मैंने देखा वो 5वीं ब्लेसिंग है, नम्र व्यक्ति परमेश्वर के आदर को अट्रैक्ट करता है। बाइबल कहती है नीति वचन इसके 15 अध्याय के 33 वचन में, ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। इन अदर वर्ड्स, आदर आने से पहले नम्रता आती है। सोच के देखो क्या ब्यूटीफुल बात है। जब नम्रता आती है आपके जीवन में तो वो आदर और सम्मान को लेकर आती है। मेरे प्यारो, नम्र व्यक्ति सर झुका कर नहीं जीता, नम्र व्यक्ति के सर पर महिमा और प्रताप का मुकुट परमेश्वर लगा देता। जो व्यक्ति नम्र होता है, बाइबल कहती है ऑनर उसका होता है। आप सोचोगे ओ मेरा आदर होना चाहिए और आदर होने के लिए मैंने फाइट करना है, आदर होने के लिए मुझे पॉलिटिकल धरने करने हैं, आदर होने के लिए मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। नो नो नो, बाइबल सिंपली सेज अपने हार्ट में हम्बल हो जा तो देख परमेश्वर तेरा आदर करेगा। मालूम है बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन कहता है निदान परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय पे वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। जब मैं परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे नम्र होकर आ जाता हूं, परमेश्वर का हाथ मुझे ऊंचाई पे उठाता। डू यू नो वन थिंग? जब तक व्यक्ति नम्र नहीं होता परमेश्वर से आदर नहीं पाता। जब हम नम्र हो जाते हैं हम परमेश्वर से आदर पाने लगते हैं। आप कहोगे मेरे घर में मेरा आदर नहीं होता ब्रदर, मेरे मोहल्ले में मेरा आदर नहीं होता ब्रदर, मेरे सोसाइटी में कोई मेरा आदर नहीं करता, मेरे वर्क प्लेस में सब मेरे से जलते, मेरा आदर नहीं करते। माय फ्रेंड, नम्रता को पहन ले, यीशु के नम्रता को पहन ले, यीशु का स्वभाव तेरे अंदर आने दे। नम्रता हर एक को तेरे सामने झुका देगा, क्योंकि मूसा नम्र था, फ़ारो उसके सामने झुक गया, मिस्र उसके सामने झुक गया, ओ देश उसके सामने झुक गया। नम्र व्यक्ति के आगे हर कोई झुकता है। बाइबल कहती है नम्रता ऐसा एक वेपन है जो सबको झुका देता। हमारे देश का इतिहास देखो, जब ब्रिटेन ने भारत के ऊपर में कब्जा करके रखा और भारत को गुलाम बना के रखा, तब गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से, एक नम्र अप्रोच के माध्यम से क्या किया? भारत देश को स्वतंत्र करवा दिया। माय फ्रेंड, अहिंसा का मार्ग एक नम्रता का मार्ग था। नेल्सन मंडेला की स्टोरी पढ़ के देखो, अहिंसा का मार्ग एक नम्रता का मार्ग था। किसी ने एक गाल पर मारा तो यीशु की शिक्षा के अनुसार दूसरा गाल ऑफर करते थे, नम्रता में चलते थे, गाली के बदले गाली नहीं देते थे, श्राप के बदले श्राप नहीं देते थे, तनाव के बदले तनाव नहीं। आज सास बहू के बीच में झगड़े, भाई भाई के बीच में झगड़े, परिवार में बच्चे और माँ बाप के बीच में झगड़े, पड़ोसी के साथ झगड़े, रिश्तेदारों में झगड़े। वो घमंडी झगड़ों में रहता है, नम्र शांति में रहता है। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति नम्र रहता अपने जीवन में, लोग उससे शर्माते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं कर पाते हैं, उसको नीचे नहीं गिरा पाते, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति है। और बाइबल ये कहती है ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स ऑनर ऑफ गॉड। ऑनर कम्स, बाइबल सेज ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। जब नम्रता आती है अकेले नहीं आती, आदर को साथ में लेकर आती है। अकेले नहीं आती, अनुग्रह को साथ में लेकर आती है। अकेले नहीं आती, विजडम को साथ में लेकर आती है। डू यू नो व्हाट? दिस इज अ क्लस्टर, अ डिवाइन क्लस्टर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, नम्रता एक ऐसा मैग्नेट है जो परमेश्वर से इन तमाम बातों को आपकी ओर अट्रैक्ट कर देगा। सोच के देखो, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का विजडम, परमेश्वर का ऑनर, वो सब उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते। किसकी ओर? जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करना जानता है। यदि मैं प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करना सीख जाऊं, ओ ये सब चीजें परमेश्वर मुझे दे देगा। हम कई बार अपने आप को दूसरे से अच्छा दिखाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, दूसरों की बुराई करने लगते हैं, पड़ोसी के बारे में गंदी बातें करने लगते हैं, परिवार की नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करने लगते हैं। मेरे प्यारो, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दिल में नम्र है तो परमेश्वर सबके आगे तुमको उठाएगा। It is an amazing gift that God gives to his children. छठवीं आशीष जो मैंने नम्रता के साथ छिपी हुई पाई वो है ग्रेटनेस, बढ़ोतरी, ग्रेटनेस। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 18 अध्याय के 4 वचन में क्या कहता है? Therefore whoever humbles himself like the child is greatest in the kingdom of heaven.
जो इस बच्चे की नाई अपने आप को नम्र करेगा वही स्वर्ग में सबसे महान होगा, बाइबल कहती है। थिंक विथ मी माय फ्रेंड, जब मैं अपने आप को एक बच्चे की नहीं नम्र करता हूं, परमेश्वर कहता वो सबसे ज्यादा महान होगा। बच्चे की नहीं नम्र होने का मतलब क्या है? सिंपल चीज बताता हूं। एक बच्चा नाराज होता है और 2 मिनट में मूड चेंज भी हो जाता, वापस गले मिलने लगता, तुरंत भूल जाता, तुरंत माफ कर देता, अपने दिल में गांठ बांध के नहीं रखता। एक छोटा बच्चा जो है रोएगा, दुख में आएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन अगले ही क्षण फिर से मिल जाएगा और फिर से खेलने लगेगा जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। जिस व्यक्ति ने उसको चोट पहुंचाई उसी की गोद में आ जाएगा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो अपने हार्ट में ग्रीवेंस नहीं रखता बच्चा। वैसे ही एक नम्र व्यक्ति अपने हृदय में कड़वी जड़ को फलने नहीं देता। एक नम्र व्यक्ति अपने जीवन में कड़वे शब्द को पाल कर नहीं रखता। एक नम्र व्यक्ति अपने हृदय में पुरानी यादों को, जो टॉक्सिक यादें हैं, उसको पाले नहीं रखता। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन अपने हृदय में ओ मेरी बहन ने ये बोला था, ओ मेरी मां ने ये बोला था, ओ मेरी सास ने ये बोला था, ओ मेरे लोगों ने ये बोला था, मेरे ससुर ने ये बोला था। यू नो, वी हैव दोस टॉक्सिक मेमोरीज इन आवर हार्ट। मेरे मित्र ने मेरे साथ ऐसा किया था, एंड वी कीप ईयर्स दोस थिंग्स इन आवर हार्ट। नम्र व्यक्ति अपने हृदय में उन टॉक्सिक बातों को आने नहीं देता। नम्र हृदय में कड़वी जड़ फलवंत नहीं हो पाती। यीशु मसीह का वचन कहता है जो अपने आप को एक बच्चे के नाई नम्र करेगा वही स्वर्ग में महान होगा, वही स्वर्ग में ग्रेट होगा। आज परमेश्वर चाहता है कि आप ग्रेट बन जाए। हम ग्रेट स्वर्ग में बड़े काम करने से नहीं होते, हृदय में नम्र होने से होते हैं। परमेश्वर का वचन आपको आज ये सम्मति दे कि आप अपने हृदय में अपने आप को नम्र करें। 7वीं बात मैंने देखा वो है प्रमोशन। देयर इज अ लिफ्टिंग अप फॉर अ हम्बल मैन। देखो परमेश्वर का वचन 1 पत्रस इसके 5वें अध्याय के 6वें वचन में कहता है, हम्बल योरसेल्फ अंडर गॉड्स माइटी हैंड दैट ही मे लिफ्ट यू अप इन ड्यू टाइम। अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से नम्र कर और वो तुझे उचित समय पर ऊंचा उठाएगा। भजन संहिता 147 इसके 6वें वचन में बाइबल कहती है, ही लिफ्ट्स अप द हम्बल। वो नम्र व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स नंबर 10 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कर, वो तुझे ऊंचा करेगा। हाउ अमेजिंग इट इज। जब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करता, वो मुझे धूरी पर पड़े नहीं रहने देना चाहता। वो मुझे धूरी से उठाकर अधिपतियों के साथ बैठा देता। वो मेरे दिन को बदल देता, मेरा उठना बैठना चलना फिरना बदल देता। मेरे जीवन के दिन बदल जाते जब मैं हृदय में नम्र हो जाता। 8वां आशीर्वाद जो मैंने नम्रता में पाया है, साम 149 वर्स 4 में लिखा है, गॉड ब्यूटिफाइज द हम्बल विद सैल्वेशन। वाओ, वो नम्र व्यक्ति को अपने उद्धार के द्वारा खूबसूरत बना देता है। थिंक विथ मी, ही ब्यूटिफाइज द मीक विथ हिज सैल्वेशन। ओ जब यीशु किसी को उद्धार देता ना, पापों की क्षमा देता, श्रापों से छुटकारा देता, दुष्ट आत्मा से आजादी देता, बीमारी से शिफा देता, गरीबी से छुड़ा लेता, धनाढ्य बना देता है और स्वर्ग में पिता से मिला देता है। ओ सन ऑफ मैन बिकम्स सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ मिला देता और वो उसका सैल्वेशन की ब्यूटी उसको बना देते। वो परमेश्वर हमारे अगलीनेस को नहीं देखता, यीशु के उद्धार की खूबसूरती को हमारे जीवन में देखने लगता। यदि मैं नम्र हो जाऊं परमेश्वर के सामने, जजमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि मैं नम्र हो जाऊं और नम्र व्यक्ति से गलती भी हो जाए तो भी वो क्षमा को अट्रैक्ट कर लेता, तो भी वो दया को अट्रैक्ट कर लेता, तो भी वो सैल्वेशन को अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि परमेश्वर नम्र व्यक्ति पर दया करता है। हालेलुया। आज मेरी दुआ है हर एक मेरा सुनने वाला इस बात को समझने पाए हाउ इंपॉर्टेंट टू वॉक इन मीकनेस बिफोर गॉड। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम नम्र बन जाएं। 9वां आशीर्वाद बहुत ही अद्भुत है। आइज़ाया 57 वर्स नंबर 15 It talks about the presence of God. परमेश्वर नम्र व्यक्ति को अपनी उपस्थिति से भरता है। देखिए बाइबल क्या कहती है, Thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit.
द बाइबल सेज, मैं जो सर्वोच्च पर और पवित्र जगह पर रहता हूं, मैं नम्र व्यक्ति के पास रहता हूं। वो परमेश्वर जो स्वर्गों में सिंहासन पर विराजमान है, वो नम्र व्यक्ति के करीब रहता है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज दैट द हाईएस्ट गॉड इज क्लोजेस्ट टू अ हम्बल मैन। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के आदर को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, इफ आई कैन ओनली ऑफर ऑफरिंग, आई कैन रिसीव फ्रॉम गॉड हिज प्रेजेंस। ओ काइन और हाबिल दोनों ने बलिदान चढ़ाया। बाइबल कहती है, गॉड हैड रिस्पेक्ट फॉर हाबिल एंड हिज ऑफरिंग। परमेश्वर ने काइन और उसके ऑफरिंग को आदर नहीं किया, परमेश्वर ने हाबिल और उसके ऑफरिंग को आदर किया। क्यों? क्योंकि बाइबल यह कहती है वो नम्र व्यक्ति को आदर करता है। कैसे मालूम आप नम्र हो? सिंपल, जब दूसरा व्यक्ति तरक्की करे, आपको घमंड, आपको क्रोध नहीं आता, आपको आनंद होता है। दूसरे की तरक्की में आप खुश होने लगते हैं। नम्र व्यक्ति दूसरों की तरक्की से आनंदित होता है। जब चेले यीशु मसीह के पास आए और ये कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, आज मैंने शैतान को आसमान से लाइटिंग की नाई गिरता हुआ देखा है। वाओ! Oh, Jesus never said this statement about his own ministry. He said this statement about the success of his children, of his disciples. मैं आपसे कहना चाहता, एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लाता है। एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर के प्रेजेंस को अपने जीवन में होस्ट करना जानता है। नम्रता परमेश्वर के प्रेजेंस को अट्रैक्ट करती है। नम्रता परमेश्वर के फेवर को अट्रैक्ट करती है। नम्रता परमेश्वर के अनुग्रह को अट्रैक्ट करती है। नम्रता परमेश्वर के विजडम को अट्रैक्ट करती है। नम्रता परमेश्वर के प्रोविजन को आपके जीवन में अट्रैक्ट करती है। परमेश्वर के प्रोटेक्शन को आपके जीवन में अट्रैक्ट करती है। ओ नम्र व्यक्ति अपने जीवन में फलवंत होता है। कहां मिलेगी ये नम्रता मुझे? सिंपल, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पवित्र आत्मा का फल नम्रता है। ह्यूमिलिटी इज द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। कहां मिलेगा? जब मैं सच्चे दिल से परमेश्वर से पुकारूंगा और प्रभु से कहूंगा, लॉर्ड जीसस, आई नीड योर होली स्पिरिट, आई नीड दैट हम्बल हार्ट। मुझे एक कॉन्ट्राइट हार्ट दे, एक लोली हार्ट दे प्रभु। एक टूटा मन परमेश्वर को भाने योग्य बलिदान है। बाइबल कहती है, गॉड इज अट्रैक्टेड टू अ हम्बल पर्सन। आज रात परमेश्वर को समर्पण अपने जीवन का कर दो। आज सुबह परमेश्वर को अपने जीवन का समर्पण कर दो। मैं नहीं जानता किस टाइम जोन में आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन चाहे सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, रिमेंबर वन थिंग, आज उद्धार का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। एक पापी व्यक्ति अपने पाप में चलता रहता है, मालूम क्यों? क्योंकि वो घमंडी है। लेकिन जिस दिन वो नम्र हो जाता और प्रभु से कहता, प्रभु ये पाप मुझे बर्बाद कर रहा, मैं आपके सामने नम्र हो जाता हूं, वो यीशु उस नम्र व्यक्ति को पकड़ लेता, अपने लहू से धोकर शुद्ध करता और उसको नया जीवन प्रदान करता। यीशु मसीह कहता है, स्वस्थ को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, रोगी को डॉक्टर की जरूरत है। आज यदि आप अपने जीवन में उलझनों में है, आज यदि आप अपने जीवन में एक मार्ग नहीं समझ पा रहे, परेशान है, दिक्कत में है, श्रापों में है, नहीं समझ आ रहा क्या करें, और पाप ने आपके जिंदगी को एक बोझ के रूप में दबा कर रखा है, तो आज आपको यीशु की जरूरत है। अपने आप को नम्र कर मेरे भाई और यीशु के पास आ जा। यीशु मसीह से कहे, प्रभु तेरी नम्रता मुझे दे, तेरा प्रेम मुझे दे। फिलिपियों में पौलुस ने कहा, मसीह का स्वभाव तुम में हो, वो नम्रता तुम्हारे अंदर पाई जाए। वो कलीसिया में नम्रता होना जरूरी है। जिस कलीसिया में नम्रता होती है, उस कलीसिया में झगड़े नहीं होते। जिस कलीसिया में नम्रता होती है, वहां डाहा नहीं होता, वहां फूट नहीं होता, वहां पे डिसयूनिटी नहीं होती है, वहां एक दूसरे की टांग खींचना नहीं होता। वो कलीसिया एक दूसरे की उन्नति का कारण बनती है, वो परिवार एक दूसरे के उन्नति का कारण बनता है, वो कम्युनिटी एक दूसरे के ब्लेसिंग का कारण बनती है। व्हाई? बिकॉज दे वॉक इन ह्यूमिलिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज मेरी प्रार्थना है, यीशु के नाम से हर एक कोई जो मुझे सुन रहा है, परमेश्वर की नम्रता का अभिलाषी हो जाए। आज तक प्रभु से बहुत कुछ मांगा है, नम्रता मांग। यदि आशीष चाहता है तो आशीष मत ढूंढ, नम्रता में आ जा, आशीष आ जाएगी। यदि चंगाई चाहता है, नम्र हो जा, चंगाई आ जाएगी। प्रोटेक्शन चाहता है, नम्र हो जा, प्रोटेक्शन आएगा। जो यीशु के सामने नम्र हो जाता, उसको सब कुछ मिल जाता। एक कोढ़ी यीशु के पास आया, घुटने टेका एंड वर्शिप जीसस, और बोला, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता। तो बाइबल सेज, यीशु ने हाथ बढ़ाया और वो कोढ़ी को छू दिया, वो चंगा हो गया। एक रोज की बात है,
यीशु मसीह सेवा कर रहे थे और तब एक महिला यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, आप इसे चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा, महिला, मैं यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। वो यीशु के चेलों के पास गई और कही, गुरु से विनती करो मेरी बेटी को अच्छा कर दे। वो एक कनानी स्त्री थी। यीशु मसीह के पास चेले आकर कहने लगे, इसको भेज दे, ये हमको सताती है। फिर से महिला यीशु मसीह के पास आई। यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए अच्छा नहीं बच्चों की रोटी को लेके कुत्तों को दूं। मेरे प्यारो, वो महिला इतनी नम्र थी कि ये जवाब सुनकर रिसियाई नहीं, ये जवाब सुनकर क्रोधित नहीं हुई। यीशु मसीह को कहने लगे, सच है गुरु, पर कुत्ते भी तो मालिक की मेज से गिरा हुआ चूर खाकर अपना पेट भरते हैं। यीशु ने जब यह सवाल का जवाब उसके मुख से सुना, जब यीशु ने ये कमेंट को उसके मुख से सुना, यीशु को उसकी नम्रता दिख गई और वो नम्रता के कारण परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आ गया, परमेश्वर की दया उस पर आ गई, परमेश्वर की प्रॉमिसेस उसके लिए पूरी होने लग गई और परमेश्वर ने कहा, जा ऐसे जवाब के लिए जो तूने मांगा है तुझे मिल गया। और उसकी बेटी उसी वक्त अच्छी हो गई। माय फ्रेंड, हो सकता है कोई परेशानी से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हो, आज नम्र हो जाओ और प्रभु के छुटकारे का अनुभव करो। यदि यीशु मसीह को नहीं जानते तो आज अपना जीवन यीशु मसीह को दो। हमारे नंबर्स आपके लिए है, इन नंबर्स पर कॉल करो और यीशु मसीह के बारे में अधिक जानकारी को लो। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, जो यीशु को जान लगता है उसके जैसा ट्रांसफॉर्म होने लगता है और नम्र होने लगता है। और एक बार नम्र हो गया ना तो प्रोटेक्शन आपका है, परमेश्वर का प्रोविजन आपका है, गाइडेंस आपका है, विजडम आपका है, ग्रेस आपका है, हीलिंग आपकी है। ओ परमेश्वर सारे साल्वेशन को आपको देता है और अपने प्रेजेंस को आपको दे देता है। यू विल एंजॉय दिस गॉडली लाइफ इन फुलनेस ऑफ इट्स लाइफ। यीशु मसीह ने कहा, तुम बहुतायत के जीवन को जीने पाएंगे। आज उस जीवन को अपने जीवन में प्राप्त करो। आइए सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे वचन को सुना है। आज मैं विश्वास करता प्रभु, ये वचन मेरे लिए आया कि मुझे नम्र बनाए। प्रभु मेरे जीवन में हर क्षेत्र में जहां मैं ऊंचा हूं प्रभु, वो एरिया में मैं घटता हूं ताकि तू बढ़े। प्रभु जैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने अपने आप को नम्र कहा और ये कहा, मैं घटूं और यीशु बढ़े। हे प्रभु मैं कहता हूं, मैं घट जाऊं और यीशु बढ़ जाए। हे प्रभु आज जितने ये प्रार्थना कर रहे हैं उनकी विनती को सुन ले, उनके हृदय में आ जा प्रभु और अपने उद्धार से उनको ब्यूटीफाई कर दे। यीशु तेरे प्रोमिसेस को उनके जीवन में पूरा कर दे। आज जो आंसू में है उसके आंसू पोंछे जाए, जो दुख तकलीफ में है वो शांति पाने पाए। तो टूटे मन वाले के करीब रहने वाला परमेश्वर है और पीछे हुओं का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह ये मिरेकल हर एक का होने पाए। हे प्रभु जितनों ने ये नम्रता के संदेश को सुना है, पवित्र आत्मा ये सिर्फ सुनने वाला संदेश नहीं, ये बीज के माध्यम से उनके हृदय के ग्राउंड पर गिरे और 1000 गुना फल लाने पाए। आज परमेश्वर तेरे लिए एक नम्र दुल्हन खड़ी होने पाए, ऐसा अनुग्रह दे यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा मैं अपने सुनने वालों को और अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता, मसीह की नम्रता हमारे जीवन में कल्टीवेट कर दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। यदि ये प्रार्थना आपने सच्चे दिल से की है और आज यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपकी अगुवाई करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आपको लिए चलेंगे। मेरे प्यारो, कई दिनों से मैं ऑनलाइन बाइबल स्कूल को चला रहा हूँ। हर शाम को बैचेस होते हैं और अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। यदि आप ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और यीशु मसीह का चेला बनने के लिए आपको यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्लेस्ड फैमिली लाइफ के विषय में, ब्लेस्ड फाइनेंशियल लाइफ के विषय में, ब्लेस्ड स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में, लीडरशिप कोर्सेज के विषय में, तो जरूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हम पे संपर्क करिए और इन कोर्सेज के बारे में सीख लीजिए। And come and enroll yourself। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे वेबसाइट पे जाइए, सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इन जीसस नेम, आमेन। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen.
अगले संडे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।